all of you. And this is the discussion of the first editorial of the 19th of Feb of the Indian Express that says hit refresh. Now, when you read that article, you'll understand that this hit refresh is actually a metaphorical use. ठीक है, हम कब हिट रिफ्रेश करते हैं अपने कंप्यूटर्स को या किसी भी टाइम जब हम करते हैं रिफ्रेश, मतलब फिर से स्टार्ट करना, अ फ्रेश अ न्यू स्टार्ट करना, दैट इज व्हाट. सो हिट रिफ्रेश व्हेन यू यूज इट तो मेटाफोरिकल यूज हो जाता है ये कि अब कहाँ पे हिट रिफ्रेश करना पड़ेगा. लेट अस सी. सो new Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar comes to his office in a challenging moment for the Election Commission. ये हो जाता है इनका फर्स्ट पॉइंट, चैलेंजिंग मोमेंट है ये अभी. ठीक है. To begin with, there is a controversy over the appointment. ये आ गया challenge one. Over the appointment, leader of the opposition Rahul Gandhi, part of the three-member panel, has made his protest over the midnight decision. Public panel has made his protest over the midnight decision. Public alleging it was disrespectful and discourteous. क्योंकि ये मिडनाइट डिसीजन है तो उनके शब्दों में, उन्हीं के शब्दों में डिसकर्टियस भी है, डिसरिस्पेक्टफुल भी है. मतलब ये चैलेंज नंबर वन हो गया जब ऑथर ने कहा कि ये किस टाइम पे गद्दी पे आए हैं. वो एक चैलेंजिंग मोमेंट था. दिस इज वन ऑफ द चैलेंज. नाउ द गवर्नमेंट टू गो अहेड व्हाइल द अपॉइंटमेंट प्रोसेस वाज बीइंग चैलेंज्ड, राइट. वो चैलेंजेस थे. नाउ दिस वाज बीइंग चैलेंज, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसी पे अभी तो इतनी ज्यादा डिबेट चल रही है, राइट. सो व्हेन दिस process was being challenged, during this debate only he has been appointed. तो अभी पहले फिक्स तो हो कि किस प्रोसेस को फॉलो करना है, लेकिन वो अपॉइंट हो गए. The government acted as per the law enacted after being prodded by the SC. This controversy will be resolved after the issue gets its day in court. ठीक है. तो एससी ने जब उनको कुछ कहा, उस हिसाब से गवर्नमेंट ने एक्ट किया. अब ये इशू जब डेट आएगी लाइन में, जब ये मैटर जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सामने, तब बात करेंगे कि इसका नतीजा क्या हुआ, राइट. So later on it will be, the decision will be there, but then still for the time being they have taken the decision of appointing him as the new CEC. But the new CEC's task is an arduous one. अब आ गया ये ऑथर का मेन पॉइंट. आर्डियस यानी डिफिकल्ट. ठीक है. तो यहां तक अभी तक तो इनकी रीजनिंग चल रही थी कि चैलेंजेस हैं, और इसीलिए उसे पॉइंट कहा कि आर्डुअस टास्क है. तो कोई भी चीज डिफिकल्ट कब होगी, क्यों होगी डिफिकल्ट? क्योंकि चैलेंजेस है वहां पे, राइट. सो दिस बिकम्स द पॉइंट ऑफ द ऑथर दैट यस दिस टास्क इज an arduous task, difficult one. Why? Because there are many challenges, and one of them has been stated also. So now you can see how we apply point, reason, example everywhere. Whatever we are reading, we should be able to apply this filter. Point कहाँ हो जाएगा, reasoning क्या हो जाएगा. Now he takes charge amid a heightened political polarization. On one end is a government entering a third term with a pared down tally but notching up successful electoral gains. And on the other, an opposition with a larger foothold but still flailing for a way forward. फ्लेलिंग फॉर अ वे फॉरवर्ड, मतलब अभी तक उसे रास्ता मिला नहीं है. धीरे धीरे उनके नंबर्स बड़े हैं लेकिन रास्ता सही तरीके से पकड़े नहीं है. और ये है जो ऑन द वन हैंड, ऑन द सेकंड हैंड जो बोल रहे हैं, तो वन ऑन द वन हैंड इज बीजेपी एंड द अदर, और रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन पार्टी, दोनों का बोला है. सो दिस इज अगेन challenge. Now see what has the author done. He has given one here and two here, and in between he has given you the point. Now, the EC also shows signs of an institutional fraying that is both the cause and result of a larger denting of the public trust. पब्लिक ट्रस्ट तो कम हो गई है, इसीलिए इंस्टीट्यूशनल फ्रे होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट इसमें कम हो गई है. The graph of the sleepy institution that was awakened to its formidable constitutional mandate and powers by the then CNC, TN Session,
in the 1990s can be said to have waxed and waned after that. ठीक है, अब जब इसने कहा waxed and waned और यहाँ पे कहा है ग्राफ, तो ग्राफ क्या होगा? वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ द ग्राफ का मतलब या तो ऊपर होते हैं या तो नीचे हो जाएंगे, राइट? सो दिस इज लाइक गोइंग दिस वे, कभी ऊपर कभी नीचे. They have waxed and waned even as it continues to draw admiration for its administration of one of the most unique and complex tasks of the election मैनेजमेंट. इलेक्शन मैनेजमेंट इन्होंने अभी तक तो काफी अच्छा कर लिया है, तो उसके हिसाब से उन्हें एडमिरेशन तो मिल ही जाती है, राइट? और ये है सीएसी टीएन शेषन, जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दिलवाया. अवेकेंड मतलब उनका, उनकी नजर में ही मेड इट वेरी इंपॉर्टेंट organ of the government, and then they were admired also, right? So now here the point is the institutional frame, and this is giving you the again the reasoning bit of it, right? So waxing and waning, this is waxing, increase hona, and this is waning, decrease hona. ठीक है, decline hona. This is the new one, and this is the TN station. Then, in recent elections, the opposition has stepped up the decibel levels of questions about the fairness of the poll process. ये opposition ने कहा कि आखिर poll process जो है वो कितना सही है, एक question mark उन्होंने लगाया. Level of questions है काफी ज्यादा है. So these have ranged from a clamor over the alleged unreliability of the EVMs to doubts over delays in making turnout data public to accusations of illegitimate additions and deletions in electoral rolls. ठीक है, क्लैमर ओवर मतलब बहुत ज्यादा आवाज करना किसी चीज पर. तो उन्होंने किस चीज पे आवाज की? एक अनरिलायबिलिटी ऑफ ईवीएम करी थी उन्होंने, और दूसरा ये जो टर्नआउट डेटा है पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई, न उन्होंने एग्जैक्ट डेटा दिया. इसके ऊपर ऑपोजिशन ने बहुत कुछ बोला है. Now there is more noise and little evidence for many of these allegations. More noise and little evidence मतलब सिर्फ बातें ही हैं करने की, लेकिन उन्होंने उनके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं कि ईवीएम कौन सी स्टेट में अच्छे से नहीं चल रही थी. तो जिस स्टेट में वो ऑपोजिशन पार्टी जीतती है, उस स्टेट में भी तो वही ईवीएम्स काम आते हैं ना फिर. So which have not withstood the scrutiny of the court. The impression that they are being used as stand-ins for a harder reckoning by the elections losers is also unavoidable. Outgoing CEC Rajiv Kumar has a point. Therefore, when he expresses concern over the spread of rumor, तो बोल रहे हैं कि जब ऐसे rumor spread होती है, तो फिर ध्यान से सुनना समझना, हमें कुछ ना कुछ तो एविडेंस चाहिए ही होता है ना. यू कैन जस्ट कांट ब्लोट इट that way. For the EC being unfairly blamed by those unwilling to accept the electoral outcomes. ठीक है, यही होता है, इलेक्टोरल आउटकम्स हो जाते हैं, हमारी पार्टी जीतनी चाहिए था, कहाँ पे नहीं जीती है तो ईवीएम मशीन ही खराब है. जैसे वो होता है ना, सार ग्रेप्स हम मीडियम्स करते हैं तो हमें खट्टे अंगूर या सार ग्रेप्स बोलते हैं, राइट? सो समथिंग दैट इज नॉट, you can't get it, unachievable लगता है, तो फिर ओके फाइन, आई डोंट वांट इट ओनली, फिर ऐसा वाला हो जाता है. या तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग दे इन द मशीन ओनली. तो ये बोला कि जहाँ पे इलेक्टोरल गेन्स या आउटकम्स होते हैं जो कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, तो वहां पे फिर वो इलेक्टोरल प्रोसेस में ही गलतियां ढूंढने की कोशिश करते हैं. और इसी के हिसाब से उन्होंने ईवीएम्स पे डाउट किया और डेटा, पब्लिक टर्नआउट डेटा पे भी उंगलियां उठाई. तो दिस इज व्हाट द आउटगोइंग सीसी राजीव कुमार हैज टू से. According to the author, he has a point also. Hey, this is Rajiv Kumar, the outgoing CC. Having said that, however, CC Ganesh Kumar must pause and ask what the EC has done and what it can do to shore up faith in one of India's most distinguished institutions. ये जितनी institution है ये EC, Election Commission. तो ये अब आराम से बैठ के उनको जो न्यू CNC हैं ज्ञानेश कुमार जी, उनको ध्यान से देखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने आखिर अब तक लोगों का भरोसा जीतने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और क्या क्या कर सकते हैं वो. राइट, इफ देयर इज अ लैक ऑफ, देयर इज अनरिलायबिलिटी, द वर्ड वाज देयर, नो, what can the EC do to get the trust of the public back? This is what is the first challenge that he has to do.
ऑफ फेस, तो उनको काम करना पड़ेगा इस हिसाब से. Now there are genuine concerns that the powerful are able to tilt the playing field or the election calendar to their advantage, and anxiety is that the poll monitor has given the ruling party the benefit of the doubt. जेन्युइन कंसर्न है, मतलब ऑथर के हिसाब से हाँ ये बात कंसर्न है कि गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट के हिसाब से इलेक्शन कमीशन कभी कभी डेट सेट कर लेते हैं, इलेक्शन कैलेंडर बना देते हैं, एंड दैट विल बी टू देयर एडवांटेज. Rajiv Gandhi had joined the poll panel amid a controversy over the EC's alleged double standard over Model Code of Conduct violations in 2019. And it was in his tenure as CEC that the Commission's decision to send notices to party presidents for words spoken by the leaders marked a dubious first. इसका मतलब ये था कि जब पिछली बार 2019 में इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से काम कर रहे थे, वहां पर पार्टीज के जो प्रेसिडेंट थे उन्हें भी नोटिस भेजे गए कि देखो आपके जो बाकी के लीडर्स हैं, अगर वो कहीं पे स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, रैलियां करते हैं, सभा करते हैं, तो वहां पे किस तरीके के वर्ड्स वो यूज कर रहे हैं फॉर द ऑपोजिशन और फॉर एनीबडी. बट देन द नोटिसेस हैड बीन सेंट and there was a controversy. So this is talking about the controversies that are surrounding the EC. चाहे कोई भी हो, उसका जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कोई भी हो, इनके आसपास जो चल रही हैं प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स अब जो न्यू सीईसी है उन्हें सामना करना पड़ेगा उन प्रॉब्लम्स का. So therefore, all these things would be considered as the challenge that the person elected has to now face. And then, of course, take the institution ahead. So the EC needs to address apprehensions about its conduct. Needs to. अब ये जरूरी हो जाता है. Open and transparent manner. ठीक है. तो जो जो उनके इल्जाम लगाए जाते हैं, जो जो rumors चल रहे हैं, whatever has been allegedly stated against them, the work or the task of the new CEC will be to understand or help the people understand these apprehensions, so these doubts. So he has to address these doubts, handle करना पड़ेगा open and transparent manner में. So it must engage with all players and stakeholders as the monitorial institution. It cannot appear either evasive or combative. ठीक है, ये नहीं कर सकते हैं, या तो इवेजिव यानी एस्केप करना, वो कोई भी चैलेंज हो, रूमर्स हो, he'll have to face it, he'll have to address it, right? So he can't escape it, and he can't come up like fighting फॉर एकदम से गुस्सा करके तैश में आके अग्रेसिव हो जाए, ये भी नहीं कर सकते. तो न वो बच सकते हैं, न अग्रेसिव हो सकते हैं. तो जो भी वो काम करेंगे बड़ा सोच समझ के ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मेथड के साथ ही विल हैव टू एड्रेस द चैलेंजेस दैट ही विल फेस vis-a-vis the opposition's concerns. Now the new CEC could begin by, अब देखो ऑथर अपना सजेशन दे रहे हैं ना, he could begin by opening the doors of his institution to all those who might have a question and draft his responses in a tone that echoes impartial voice of the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा. कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, नॉट दैट ऑफ एन एंग्री आउटबर्स्ट. तो एंग्री आउटबर्स्ट हो गया आपके लिए कॉम्पिटिटिव का मीनिंग. बाय अ पार्टी स्पोक्स पर्सन. वेलकम सीसी ज्ञानेश कुमार. Now understand, if I give you the style of the passage, it can be analytical, right? It can be argumentative. ये भी हो सकता है. आखिरी के वर्ड से अगर कोई पूछेगा कि चलो व्हाट वाज द स्टाइल रिफ्लेक्टेड और व्हाट इज द टोन रिफ्लेक्टेड इन द लास्ट सेंटेंस, तो दिस सेंटेंस मे बी इंटरप्रेटेड एज अ लिटिल sarcastic. इट इज नॉट सटायरिकल, ह्यूमर नहीं है, पर थोड़ा सा सरकाजम है इसमें कि चलो देखो अब तुम्हारे सामने कितने सारे टास्क हैं, सो वेलकम. हल्का सा सरकाजम इसमें दिख जाता है. ठीक है, ये एक जेन्युइन रेड कार्पेट ट्रीटमेंट वाला वेलकम नहीं है. इट इज लाइक वेलकम टू द पार्टी वाला, क्योंकि वेलकम टू द प्रॉब्लम्स ऐसा वाला, वेलकम टू द चैलेंजेस. सो दिस इज द टास्क दैट ही हैज टू डू. सो इफ यू सेग्रीगेट द पैसेज यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे पास शुरू में उसने रीजनिंग दे दिया है, उसके साथ उसे पॉइंट कहा कि देखो ये इस टाइम पे पहुंचे हैं या इस टाइम पे उनको सिलेक्ट किया गया है, जो कि एक बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट है. इफ इट इज अ चैलेंजिंग मोमेंट,
So there are many challenges in front of him. So what the election commission is actually facing, it is facing allegations, it is facing rumors, it has to cater to, or it has to address these apprehensions. The people do not have faith in the institution. All this combined together, this is the scenario in the present times. When he is elected as a new CEC, now he is to face all the problems there, all the challenges. How he should overcome these challenges, so the action that he takes, the decision that he makes, should be um, open and transparent, unbiased hone chahiye, right? And he should not be aggressive, he should not be angry, it should not be a outburst, it should be thoughtful, it cannot be evasive. तो सोच समझ के उन्हें डिसीजंस लेने पड़ेंगे. दिस इज द टास्क. सो वेलकम टू द प्रॉब्लम्स. दैट वाज द पैसेज इन शॉर्ट. ठीक है. सो दिस इज द चैलेंज नंबर 1. न्यू सीज टास्क, जैसे पहले कहा था मैंने, ये पॉइंट है. ठीक है. It is fraying, it shows signs of fraying. This is another point, and which has been exemplified और reasoned out. उसने बहुत सारा डेटा दे दिया इसने. डेटा मतलब परसेंटेज वाली बात नहीं होगी, पर क्या क्या हुआ है, अप्स एंड डाउन्स हुए, ऑल दिस कैन बी like proven, verified. So he is giving you the ups and downs and then no evidence. So इसके पास है more noise and little evidence. This is the author's saying that all the allegations, all the apprehensions, all the unreliability that the people have for these institutions, there's much noise here, but there's less evidence here, right? And there's a lot of rumor. ये भी है. तो ये सब अभी रीजनिंग में जाता है. What he must do and ask what the EC has done. ये बात उसे देखनी है. तो this is giving you another point of how this person has actually to work now. And then he could begin by. So how, what is required and what he can do. ये दिए दिया है उन्होंने लास्ट पैराग्राफ में. तो हमारे पास आ जाती है पॉइंट्स कैसे. challenges that the EC faces, right? अब ये न्यू CEC है, so he has to address these challenges. If he addresses these challenges, and how to do it. How to do में उन्होंने कहा था what needs to be done and what he could do. बस ये शॉर्ट फॉर्म आपका हो गया. What is required to be done and what he could do. All combined together gives you the main idea. So he's taking office in a challenging hour. ये सही है. He has to engage with all the stakeholders. सभी की बात सुननी होंगी उनको. He can begin by being more welcoming of questions. Can begin by the what he can do. ये क्या कर सकते हैं. Responding to them in an impartial voice. Evasive नहीं. अनरिलायबल नहीं, बायस्ड नहीं, इम्पार्शियल होके उन्हें देखना है पूरा मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के जैसा. देन ही नीड्स टू एड्रेस, एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है. व्हाट ही नीड्स टू डू, ही हैज टू एड्रेस द अप्रीहेंशंस. अब देखो अप्रीहेंशंस बोलो या वेलकमिंग क्वेश्चंस करो या स्टेक होल्डर्स का प्रॉब्लम करो, सब एक ही बात हो जाती है. इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ यू फ्रेम द क्वेश्चन, राइट. एंड ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट थी वहां पर. वही सेंटेंस इधर नोट डाउन किया है मैंने. ठीक है. सो फ्रॉम दिस फ्यू सेंटेंसेस यू कैन कम टू द मेन आइडिया इजीली. कम ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ड्स हियर. सो चैलेंजिंग मोमेंट इज समथिंग दैट रिक्वायर्स ऑल योर अटेंशन. वो चैलेंजिंग हो जाता है. ठीक है. Something that is not easy becomes challenging. Something that requires your complete attention is challenging. Something that is formidable, causing fear, is challenging. तो चैलेंजिंग मोमेंट मतलब नॉट एन इजी टास्क. आप ये समझ सकते हो फिर. ठीक है.
डिसकर्टियस इज नॉट रिस्पेक्टफुल, डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है. कर्टियस मतलब पोलाइट होता है. तो discourteous is somebody who is not polite. तो अब यहाँ पे पोलाइट इन द सेंस कि ऐसा नहीं बनता है. ऑफेंड हो गए राहुल गांधी, ऑफेंड हो गए किस बात पर? तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये मिडनाइट डिसीजन कैसे ले लिया आपने, नया सीईसी कैसे अपॉइंट कर दिया. ठीक है. Now, as per the law is enacted after being prodded by the SC. Prodded का मतलब होता है धीरे से पुश कर देना. ठीक है. Arduous I have given you, difficult हो सकता है, arduous journey होता है. Something that is an uphill task can be arduous. Other is a lot of manual physical labor is required. तो arduous हो जाएगा. ठीक है. पेयर डाउन टैली, पेयर डाउन का पेयर का मतलब होता है कट. जब हम नेल्स को कट करते हैं तो दैट इज पेयरिंग ऑफ द नेल्स, राइट. सो पेयर मीन्स कट. अगर अब अगर आप कट वाला यूज करते हो तो कट डाउन टैली मतलब नंबर कट हो गए थे. पहले नंबर 2019 में काफी सारे थे. उसके बाद थर्ड टर्म में आके इनका नंबर जो था लोकसभा सीट्स का वो कम हो गया. नॉचिंग अप सक्सेसफुल इलेक्टोरल गेन्स. नॉचिंग अप है ना, धीरे 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 लेवल्स बढ़ा लेना. नॉच हायर, नॉच का मतलब होता है एक एक कदम ऊपर जाना. लेवल्स. तो धीरे धीरे इलेक्टोरल गेन्स होती जा रही है उनको बिकॉज द स्टेट्स आर कमिंग अंडर द रूलिंग पार्टीज थिंग. नाउ दिस इज लाइक विथ अ मेजर फुटहोल्ड बट स्टिल फ्लेलिंग फॉर अ वे फॉरवर्ड. फ्लेलिंग का मतलब होता है आप ये सोचो कभी कोई ऊपर से पहाड़ी से छलांग लगती है जब, ठीक है, और सपोज वो हार्नेस नहीं बंदा हो, तो हाउ वुड दैट पर्सन बी लाइक कमिंग डाउन इन दी एयर. तो उसके हाथ पांव इधर उधर हो जाते हैं पूरे, ऐसे भटकते हैं जैसे, तो आसमान में. उसे कहते हैं फ्लेलिंग, right? Not in a proper order. So it is like, is this flailing? They're not, they don't know how to move ahead. So they are just like lost in the path. ये हो जाता है flailing. Fraying यहाँ पे आ जाएगा, showing signs of institutional fraying. Fraying is weakening. कहीं कहीं पे इंस्टीट्यूशन ये वीकन दिखता है. ठीक है. लार्जर डेंटिंग ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट. डेंट का मतलब होता है टू मेक अ होल देयर, है ना. कार में एक्सीडेंट हो जाता है तो डेंट हो जाता है. ठीक है. सो दैट इज रिड्यूसिंग लार्जर डेंटिंग ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट. और डेंट इन योर पॉकेट. आपने कुछ बहुत बड़ी चीज खरीद ली तो आपकी सेविंग्स में से काफी सारा हिस्सा निकल जाता है, राइट. सो इट अगेन बिकम्स अ होल और अ गैप. अब इस तरीके से समझ लो. स्लीपी इंस्टीट्यूशन, हाँ, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है. इंस्टीट्यूशन अगर सो रही है इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन. सोना इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है ना, इंसानों का काम होता है. सो स्लीपी इंस्टीट्यूशन पर्सोनिफिकेशन एग्जाम्पल है. फॉर्मिडेबल इज थ्रेटनिंग, कॉजिंग फियर, इंटिमिडेटिंग. ठीक है. वैक्सिंग एंड वेनिंग, दिस इज इंक्रीजिंग एंड दिस इज डिक्लाइनिंग और रिड्यूस्ड. डिक्लाइन. रिड्यूस लिख सकते हो. ठीक है. डेसिबल लेवल्स. डेसिबल लेवल्स मतलब कितना साउंड होता है. डेसिबल इज मेजरमेंट फॉर साउंड. तो जब आप बोलते हो स्टेप्ड अप द डेसिबल लेवल्स, इसका मतलब बहुत बार उन्होंने ये चीजें ऊंची आवाज में बोली है. अब ऊंची आवाज लिटरली वाली नहीं है, but these things, these points have been repeatedly mentioned everywhere, means everywhere, right? So they have stepped up the decibel levels of questions. धीरे धीरे आपके क्वेश्चन ज्यादा तीखे होते जाते हैं और ज्यादा आप ज्यादा जगह पे उसको यूज करना शुरू कर देते हो. So you are against all that. So they have ranged from, now see how many questions have been posed. Many. Now these are the phrasal verbs. Clamor over something होता है.
सिमिलरली डाउट्स ओवर समथिंग होता है, ठीक है। और वैसे ही अगर अब आप सोचोगे डिसएग्रीमेंट ओवर समथिंग, डिस्प्यूट ओवर समथिंग, कंट्रोवर्सी ओवर समथिंग, डिसअप्रूवल ओवर समथिंग, ये भी हो सकता है। फ्यूड ओवर समथिंग, मतलब झगड़ा वाली जब चीज आती है ना, तो आप वर्ड ओवर यूज कर लो, दैट विल बी वेरी इजी। Acquisitions of something होगा, scrutiny, ठीक है, which is the scrutiny of the court? The scrutiny is to examine something very closely, scrutinize होता है, ठीक है। अब देखो, claimer over, doubts over और concern over something, this becomes your phrasal verb now. To shore up faith is to increase, अब देखो ये भी phrasal verb एक बन जाता है, to shore up something मतलब increase करना। अब आप चाहे faith increase करो या sales increase करो, मार्केटिंग के टर्म्स में कुछ भी, राइट। टिल्ट द प्लेइंग फील्ड, अगेन मेटाफोरिकल यूज हो गया। टिल्ट का मतलब होता है लीन करना, साइडवेज हो जाना, तो टिल्ट टिल्टेड हो जाएगा ना, जैसे ये थोड़ा टिल्टेड है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये टिल्टेड है, लॉपसाइडेड। So you are tilting the playing field means you are shifting the scenario towards yourself, towards your benefit. That was what was he was talking, कि हम genuine concerns हैं कि पावरफुल जो है वो अपने तरफ के लिए, अपने फायदे के लिए चीजों को चेंज कर लेते हैं, दैट इज टिल्टिंग द प्लेइंग फील्ड, ठीक है। ड्यूबियस इज डाउटफुल, apprehensions also again we have doubts, engage with becomes the phrasal verb, engage to someone या engage with something हो जाएगा, engage with all the players, तो engage with का मतलब होता है उनके साथ काम कर लेना। evasive is escape, मैं बोल दिया है। कम्बेटिव इज अगेंस्ट वाला, जब फाइट वाला आ जाता है तब कॉम्बैट आता है, फाइट अगेंस्ट, सो मीन्स कॉम्बैट। एंड विज मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू, उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू। सो ह्यूमन विज नेचर, ठीक है। सो ह्यूमंस और द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमंस, एटीट्यूड ऑफ द ह्यूमंस विद रिस्पेक्ट टू नेचर, वहां पे कई बार विज यूज होता है। सो that was regarding the vocabulary. Now let's see what more you have to read. Task before the new CEO, HT में से आ जाएगा CC, CO नहीं, CC. So it is related to the same topic, but the HT article is also well written, quite well written. He is mentioning the task. अभी जब आपने ये समझ लिया, तो अब आप HT वाला एक आर्टिकल को पढ़ लेना, तो पूरी क्लैरिटी हो जाएगी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेटिंग एन एग्जाम्पल क्वाइटली, ये किसी एक पर्सन के बारे में है, right? What he did and how he did. So you can read this article. It's on the same page, the same newspaper. Legacy of Gauri Lankesh. This is a book review in the Business Standard page पे आ जाएगा वो. I am on the hit list. Book का नाम है, ठीक है। तो किसके बारे में है? वो गौरी लंकेश के बारे में है। अब गौरी लंकेश कौन थी, उनके साथ क्या हुआ और क्या किया इन्होंने, राइट। So you'll get to understand the book also, and if it interests you, you can read it later on, or you can at least write down the name कि चलो ठीक है। तो बुक रिव्यू हमने बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है, ये कर सकते हो, एक ही आर्टिकल हो जाएगा आपका। इवन दिस इज अबाउट अ पर्सनालिटी ओनली, नॉट मच नोन, ठीक है, तभी वो क्वाइटली वर्ड आया है। एंड देन दिस इज अबाउट द सेम आर्टिकल, द सीईसी, द न्यू सीईसी ज्ञानेश कुमार जी, right? I think so this much reading for today will be enough for you, apart from your newspaper reading completely. So that's all for today. Thank you, and stay logical and stay positive.